बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। आज 5वां दिन है और पिछले हफ्ते हुए 4 दिन में संसद की कार्रवाई कुल लगभग 1 घंटे के आसपास चली थी और अब 5वां दिन से बहुत उम्मीद है थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू होने जा रही है। लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है। आज उधर किसान भी दिल्ली कूच कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के किसान 45,000 की संख्या में संसद का घेराव करने की तैयारी पे है। दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील किया गया है, सुरक्षा कड़ी व्यवस्था की गई है। 12 बजे संसद की ओर कूच करेंगे किसान, जिन्हें रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है आज। लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिल पेश करने जा रही हैं। आज संसद में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत चीन के संबंधों को लेकर भी बयान दिया जाएगा। उधर दिल्ली कूच की तैयारी में ग्रेटर नोएडा के किसान। तो बड़ी खबरें संसद से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं और कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। 5वां दिन है और पिछले हफ्ते की सभी कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी। लगातार अडानी और संबल मुद्दों पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था, लेकिन अब एक नया दिन है सप्ताह की और पहले दिन कार्रवाई चल रही है। We are providing a national recognition to these institutions. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship issued guidelines with this regard in 2019. A total of 6 COEs have been recognized, given that status by the Ministry. But apart from this, a total of 202 centers of excellence have been established with the help of our sector skill councils. The 36 sector skill councils, as you know, are the principal bodies where we involve industry. In fact, these organizations are led by industry and they work in coordination under the ministry as well. Sir, out of the 202, because the Honorable MP asked me about Andhra Pradesh, a total of 8 centers of excellence have been established in Andhra Pradesh. Thank you. Supplementary, well, my constituency Anantapur receives sunlight all around the year, sir, and it is home to 2 major solar parks contributing 62% to the state's renewable energy capacity, sir. A world-class energy university is also proposed to be established in Anantapur, owing to the region's immense renewable energy potential. Under the visionary leadership of Nara Chandrababu Naidu Garu, Andhra Pradesh has recently introduced the AP Integrated Clean Energy Policy 2024, sir, targeting the generation of 78.5 gigawatts of solar and 35 gigawatts of wind power over the next 5 years, sir. Given Anantapur's prominent role in renewable energy and its potential to drive the state ambitious targets, sir, I would like to ask the Minister, is there any plan to establish a center of excellence for skill development and R&D in renewable energy in Anantapur to create a green workforce and strengthen the clean energy system, sir? Thank you. I thank the Honorable Member. It is true that Andhra Pradesh is a leader in the space of technology with regards to green jobs. The Honorable MP asked me specifically about the green job sector. I'd like to inform him that out of the 36 sector councils, one of our councils relates specifically to the space of green jobs. Nadda ji's mother-in-law, Srimati Jayashri Banerjee, is a former Lok Sabha MP and a former cabinet minister in Madhya Pradesh, reflecting a legacy of public service he inherits. The couple is blessed with 2 sons, Harish, a lawyer, and Girish, an MBA graduate. On my own and on behalf of all members of the House, I wish him a long, happy. तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की। लोकसभा में लगातार हंगामा हो रहा है, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा में कार्रवाई चल रही है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से, हमारे सहयोगी। राकेश, पिछला हफ्ता तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, आज भी शुरुआत कुछ ऐसी लोकसभा में हुई है। ये कौन है जो वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं? क्या मुद्दा है जिसको लेकर हंगामा लोकसभा में हो रहा है?
देखिए विवेक, ये विपक्षी सांसद मानने को तैयार नहीं है। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है और विपक्ष लगातार अडानी के मुद्दे पर अटका हुआ है, जबकि 16 विधेयक जो है सूचीबद्ध है। उसमें से आज एक अहम बिल जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं, लेकिन पीछे से सपा के सांसद और कांग्रेस के सांसद वी वांट जस्टिस या संभल हिंसा के मुद्दे पर और अडानी के मुद्दे पर लगातार लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं। दूसरी ओर आज देखिए कि संसद के बाहर भी और अंदर भी हाई वोल्टेज ड्रामा लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। राकेश, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। बिल्कुल विवेक, देखिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना इस वक्त जरूरी हो गया है। इसलिए जरूरी हो गया है कि पिछले 5 दिनों से जिस अहम मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए, जिस बिल पर अपने संसदीय क्षेत्रों से आने वाले सांसदों को बात करना चाहिए, वो एक ही मुद्दे पर लगातार रट लगाए हुए हैं और संसद को अभी फिलहाल स्थगित करना जरूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि बाहर से जो है किसानों ने भी प्रेशर बना दिया है। भारतीय किसान परिषद के नेता सुखवीर खलीफा ने कहा है कि हम संसद तक पहुंचेंगे और किसानों की जो 10 तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर राकेश, आपको मैं रोक रहा हूं, अपडेट दे दूं कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद की कार्यवाही का शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है और शुरू होते ही आप देखिए समय 11:07 का हो रहा है, यानी 5 से 6 मिनट ये कार्रवाई चलती है, उसके बाद इसे स्थगित करना पड़ता है। इतना जबरदस्त शोर हंगामा जिसके चलते ये कार्रवाई स्थगित की गई है 1 घंटे के लिए। अब 12 बजे फिर से कार्रवाई शुरू होगी, तब ये देखना होगा कि क्या कार्रवाई चल पाती है, क्योंकि लगातार पिछले 4 बार से ऐसा ही हो रहा है। सत्र की कार्रवाई पहले 1 घंटे, उसके बाद फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। तो आज नए हफ्ते का पहला दिन है और आज भी हंगामा विपक्षी सांसदों का देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अब 4 तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि 11 बजे की जो बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने है। किसानों का संसद कूच, सत्र का 5वां दिन, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो कि 1 घंटे के लिए स्थगित हो गई है। 12 बजे फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। उधर दिल्ली नोएडा में हाई अलर्ट जारी किया गया है, प्राधिकरण से नहीं बनी बात, ये खबर भी आपको बताएंगे विस्तार से। तो ये 4 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश की, जहां पर आप समझेंगे कि हो क्या रहा है यार और आज कौन सी बड़ी खबरें हो सकती हैं।